Second lesson, book snapshots. The address. Margam Inko. Second lesson, the address. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink, thoda sa khola. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter. Mrs. S. Yes नाम है. Yes daughter. ये नहीं पूछना इसका कोई नाम होता है क्या? ये नाम. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. जिस घर पे गई, जिसने दरवाज़ा खोला वो दरवाज़ा पकड़ रखा था ताकि सामने वाला कोई धक्का दे के अंदर ना जाए. Her face gave absolutely no sign of recognition. पहचान का कोई भाव ही नहीं दिखा रहे चेहरे में. She kept staring at me in silence. वो देखती रही. Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it is not her. अरे शायद मुझे गलती हो गई. ये शायद और कोई है, किसी और का घर पे आए मैं. I had seen her only once, fleetingly. मैं एक बार उसको जल्दी से निकलते हुए देखा. And that was years ago, भी बहुत साल पहले. It was most probable that I had rung the wrong bell. इसलिए मुझे पक्का है कि मैं गलत जगह में घंटी बजाई. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. वो दरवाजे से थोड़ा इधर हट गया तो मैंने उसका ड्रेस देखा, तो ऐसा लगा ये तो मेरी मम्मी का ही कार्डिगन है. The wooden buttons were rather pale from washing. उस समय से थोड़ा बटन फेड हो गए वॉशिंग करने से. And she saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. लेडी को ऐसा लगा कि मैं उसके कपड़े का बटन में ध्यान दे रही, तो वो और भी छिपने लगी. But I knew now that I was right. अब मुझे पता पड़े नहीं, मैं तो गलत घर पे नहीं आया, सही घर पे आया. Well, you knew my mother, I asked. तो मैंने पूछा, मेरी मम्मी को जानती थी ना? Have you come back? said the woman. तो लेडी ने बोला, तुम वापस आ गई क्या? I thought no one had come back. मेरे को ऐसा लगा कि कोई आ ही गया है. Only me. The door opened and closed in the passage behind her. ये musty smell emerged. दरवाज़ा बंद कर दी तो एक आवाज़, मतलब एक स्मेल आ गई. I regret I cannot do anything for you. देखो भाई, मैं तुम्हारा कुछ मदद नहीं कर सकते. I have come here specially on the train. I wanted to talk to you for a moment. देखो मैं दूर से आ रही हूँ, मैं ट्रेन से बैठ के आई, तो मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहती. It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. देखो मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती अभी, फिर कभी आ जाना. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. वो एकदम अंदर खिसक के दरवाज़ा ऐसा बंद किया कि किसी को परेशानी ना हो. I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. Oh, nothing. The woman would have said. It was nothing. कोई पूछा होगा कौन है, बोल दिया होगा नहीं कोई नहीं. I looked at the name plate again. फिर मैंने देखा नेम प्लेट.
Darling, it said in black letters on white enamel. Enamel means paint. ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ था डार्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनामल. वाइट पेंट के ऊपर ब्लैक लेटर में लिखा हुआ है डार्लिंग. एंड ऑन द जाम ये बिट हायर द नंबर 46. उसके साथ साथ थोड़ा सा हटकर ये भी लिखा हुआ था नंबर 46. इट इज़ द नेम ऑफ द हाउस. The number of the house number 46. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. मैं वापस गया, क्या फ़ायदा है वहाँ खड़े रहने से. जाते समय मम्मी के बारे में सोचा. Who had given me the address years ago. कई साल पहले मुझे दिया हुआ एड्रेस के बारे में मैं सोचने लगा. It had been in the first half of the war. युद्ध के आधा समय की बात है. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. जो मैं कमरे में आ गया तो मुझे ऐसा लगा कमरे में कुछ बदलाव दिखाई दे रहे. I missed various things. देखा तो कई चीज़ें गायब है. My mother was surprised I should have noticed so quickly. मेरी मम्मी ने सोची होगी ये इतना जल्दी कैसे जांच लिया. Then she told me about Mrs. Darling. उसके बाद वो मिसेस डॉर्लिंग के बारे में मुझे बताए. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड अक्वाइंटेंस ऑफ माई मदर एंड whom she had not seen for years. उसने बताया एक है मेरा जान पहचान, कई साल पहले मैंने इसको देखा, अभी बहुत टाइम हो गए. She had suddenly turned up and renewed their contact. वो अचानक आके उसकी रिश्ता का रिन्यू किया. Since then she had come regularly. उसके बाद वो अक्सर यहाँ आई करती थी. Every time she leaves here she takes something home with her, said my mother. वो जब कभी यहाँ आके रुक जाती थी जाते समय कुछ लेके जाती थी. She took all the table silver in one go. एक ही बार सिल्वर का जो भी आइटम्स थे वो ले गए. एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर. फिर वहाँ पर जो प्लेट रखी थी ना वो भी ले गए. एंड शी हैड ट्रबल लगिंग दोस लार्ज वेसस. बड़ा पेटी उठा के ले जाने में तकलीफ तो हो रही थी. एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी. मुझे ऐसा लगा कि क्रॉकरी की वजह से, भारी की वजह से उसका कमर में झटका लग गया. माई मदर shook her head pityingly. I would never have dared ask her. मुझे हिम्मत नहीं थी उससे पूछने की. She suggested it to me herself. And she even insisted she wanted to save all my nice things. And if we have to live here, we shall lose everything, she says. और कहने लगी, मैंने सोचा ले जाने दो, अगर हमें ये जगह छोड़ के जाना पड़ेगा युद्ध की वजह से तो सभी छोड़ के जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा वो भी ले जाना. हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क. क्या आपने ऐसा वादा तो किया नहीं होगा ना कि वो उसी का ही वही रखेगा, हम डिमांड करते समय वापस तो मिलेगा ना. As if that is necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. देखो बात तो सही है, लेकिन उससे जाके इसी चीज़ें वापस मांगना तो इंसल्ट की बात है ना. And think about the risk she is running each time she goes out of our doors with a full of suitcase or bags. और तो हर समय बड़े मेहनत करके यहाँ से सूटकेस में सामान भर के ले गए, तो वापस कैसे पूछूं उससे जाके वो चीज़ें दे दो. My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me
reprovingly, and after that we spoke no more about it. मेरी मम्मी और कुछ बताना नहीं चाहा, मैं समझ गई, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं. Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. सोचते 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 स्टेशन पहुंच गए, इसलिए स्टेशन की ओर जाने के रास्ते का कोई नज़ारा का ध्यान दे नहीं पाए. I was walking in familiar places again for the first time since the war. मुझे ऐसा लगा जाना पहचाना जगह से गुजर रही हूँ मैं. But I did not want to go further than was necessary. लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ जाना नहीं चाहती हूँ. I did not want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a precious time. एक समय ये जगह हमारे लिए, यहाँ की चीज़ें हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा था, उसके बारे में हम ज़्यादा जोर देना भी नहीं चाहते. In the train back, I saw Mrs. Dorling in front of me again as I had the first time I met her. गाड़ी में सफ़र कर रहे थे वापस तो उसके चेहरा मेरे सामने आए. I was the morning after the day my mother had told me about her. एक दिन पहले ही मेरी मम्मी ने उसके बारे में बताए थे. I had got up late and coming downstairs, I saw my mother about to see someone out. तो मैं उठ के नीचे आ रही थी, तब मैं एक लेडी को देखा था, क्योंकि बाहर निकल रही थी. ये वुमन विथ ए ब्रॉड बैक, पीठ चौड़ा. देयर इज माई डॉटर, सेड माई मदर. शी बेकन टू मी. उसने मुझे इशारा करके बताया, मेरी बेटी है ये. द वुमन नोटेड एंड पिकड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक. शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट. ये कहते ही हाँ 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 ठीक है, अच्छा है, ये बोल के सूटकेस लेके निकलना शुरू की. डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड. मैंने पूछा ये दूर रहती क्या मम्मी से. सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हेवी केस. ये सूटकेस लेके जाने का तरीका देख के मैंने उससे पूछा, ये और कहीं रहती है दूर. इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर. नंबर 46, रिमेंबर दैट. हाँ बेटा याद रखना, ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, हाउस नंबर 46 में. कभी ज़रूरत पड़े तो काम आ जाएगा, ध्यान रखना इसका. आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे याद आई. बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर. लेकिन वहाँ जाने में थोड़ा देर हो गया. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. युद्ध थोड़ा शांत हो गया, उसके एकदम जाके मैं उससे कुछ बात करना नहीं चाहा, इसलिए मैंने वेट किया. Afraid of being confronted with the things that had belonged to a connection that no longer existed, and which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured all those years because they were things. फिर मैंने सोचा अगर पुराना वाला वो चीज़ें होता है, अभी युद्ध भी शांत हो गया तो सारी चीज़ें जाके वैसे अलमारी में जमाऊँ, ये सोच के वो पुरानी चीज़ को खोजने निकल पड़ी. But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened. A room with a view. You were more used to glancing at each other each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. घर पे गया तो कुछ चीज़ें ऐसा पड़े पड़े ख़राब हुए, कुछ तो ऐसे ही है. पलंग तो है, सोना है तो आराम कर सकता है. वहाँ बैठे बैठे मेरे घर के अलमारी में भरा हुआ चीज़ के बारे में सोचा, तो मैंने सोचा वो वापस मिल जाए तो मैं लाके इस तरह से जमाऊँ. इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ पर जाके मालूम कर लूँ. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम. अब की बार मुझे गलती हो गई. सही घर में पहुंचने के बाद भी वो लेडी वाज
ट्रीटिंग लाइक दैट। मैंने सोचा वो लेडी मेरे से बात इसलिए करना नहीं चाहते, उन्होंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें मांगने आए। नाउ ये गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। मैंने सोचा मैं दोबारा जाऊंगी उधर, मैं गई भी। ये तो देखना पड़ेगा लेडी ऐसा क्या किया, दरवाज़ा खोला ही नहीं, मुझे बाहर से रवाना कर दिया, जबकि मेरी मम्मी की अच्छी दोस्त, मुझे वेलकम करना तो चाहिए था, तो इससे क्यों किया। तो मैं दोबारा जाऊंगी, जा भी गई। अब एक 15 साल के करीब एक लड़की दिखाई दिया, वो दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर मदर वाज एट होम। तो मैंने सीधे पूछा, मम्मी है क्या? नो, शी सेड माई मदर इज़ डूइंग एन रैंट। नहीं, मम्मी रैंट के लिए गई। ये रैंट का मतलब सामान यहाँ से दूसरा जगह में ले जाना और वहाँ से यहाँ दूसरा सामान लेके आना, इसी काम के लिए गई है। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पासेज। कम से कम तो अंदर जाने तो दी। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। वहाँ एक कैंडल होल्डर देखा मैंने, जैसे त्योहारों में यूज़ किया जाता। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बर्सम दैन ए सिंगल कैंडल स्टिक। हम इसमें इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका तो इतना ज़रूरत भी नहीं पड़ा। वोंट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। बच्ची ने पूछा, बैठोगे नहीं? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। तो ये कहकर वो लड़की मुझे अंदर ले गई। संस्कारी लग रही है, छोटी सी। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड। जाते जाते मैं रुकी गई आश्चर्य होकर। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं ऐसा रूम में पहुंच गया जिसको मैं जानता था लेकिन जानती नहीं। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विथ ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। वहाँ मुझे जो चीज़ें चाहिए था वो तो है, वो मेरा ही। मैं ऐसा जगह में पहुँच गई, इतना सारा सामान मेरे घर के यहाँ ला के रख रही है बेटी। और बिकॉज ऑफ द tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there. I don't know, but I scarcely dared to look around me. वहाँ जो चीज़ें डाल रखा है बिल्कुल सही तरीके से जमा भी नहीं रहे, झाड़ू पोछा भी नहीं हो रही है, साफ़ सफाई भी नहीं हो रही है, बदबू भी आ रही। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं। The girl moved a chair. I sat down and stared at the wooden टेबल क्लॉथ। लड़की ने कुर्सी डाल के दिया, मैं उसमें बैठ गया तो टेबल क्लॉथ दिखाई दी। आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रू वार्मर फ्रॉम रबिंग। मैंने उसको रगड़ के देख ली। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न। मैंने उसका लाइन भी देख ली। एंड समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी अ बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। हमारे घर पे था तो किसी कोने से थोड़ा जल गए, वो अभी भी ऐसे ही है, उसको स्टिचिंग भी नहीं किया उसने। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल। तो लड़की ने बोला मम्मी आने वाली होगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। मैं उसके लिए चाय बनाई। विल यू हैव ए कप? आपको भी दे दूँ थोड़ा? थैंक यू। आई लुक्ड अप। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। शी हैड ए ब्रॉड बैग। लड़की भी मोटी। ब्रॉड बैग का मतलब कमर चौड़ी है, इसका मतलब मोटी है। जैसी माँ वैसी बेटी। शी हैड ए ब्रॉड बैग जस्ट लाइक हर मदर। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पोट। चाय के जो पोट, उसे चाय डाली। ऑल इट हैड वाज ए गुड बॉर्डर ऑफ द लिड। लिड में बॉर्डर दिखाई दे रहे। आई रिमेंबर्ड शी ओपन्ड द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। मुझे पता ये भी हमारे घर की है। फिर उसने कुछ स्पून्स निकाला। वो भी मैंने पहचान ली। दैट्स ए नाइस बॉक्स। आई हर्ड माई ओन वॉइस। मैंने तो जो मुंह से निकाला तो उसका इको हुआ, तो मेरे शब्द मुझे सुनाई दिया।
इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस। आज तो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम। उस कमरे में जो भी बोलते एक को सुनाई देते। यू नो अबाउट दम, शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड bought me my tea. She laughed. My mother says it is antique. We have got lots more. ये जो हमारी मम्मी कहती है ना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है और ऐसे बहुत सारे हमारे पास। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर यूज। ये हम बैठे बैठे देखो, ये जो पूरा रख रखी ना, बिल्कुल मम्मी कहती है बिल्कुल एंटीक है। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। अब उसको पीछा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये खुद के करके चीज़ें हो तो जानती है। आई न्यू विच थिंग शी मेंट। मैं समझ गई कि वो कौन सी चीज़ दिखाना चाह रही। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल। As a child, I had always fancied the apple on the pewter plate. Pewter means कांसा. We use it for everything, she said. ये हम हर समय यूज़ करते हैं. Once we even ate of the plate hanging there on the wall. वो दिखाई दे रहे ना वॉल में, उसी प्लेट में भी हम खाना खाए थे. I wanted to so much. बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल. वो कुछ विशेष करके बता रही थी, लेकिन मुझे कोई विशेष नहीं लगा क्योंकि मेरी घर की चीज़ें हैं. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी. तो मैं उसी पर ध्यान दे रहे थे जो टेबल क्लॉथ जला हुआ. यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन दिस हाउस, यू हार्डली लुक एट दम एनी मोर. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it. For example, जब कुछ विशेष चीज़ को देखते समय उसमें ध्यान देना चाहिए, उसमें कुछ कमी हो तो पूरा करना चाहिए. ये कहाँ से आया, खुद का है, किराए से आया, इतना तो सोचना चाहिए. Again I heard the unnatural sound of my voice and I went on. और पता नहीं मेरी आवाज़ कैसे खो कर रही थी, मैं तो बोलती रही. आई रिमेंबर माई मदर ऑन आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. एक बार मम्मी ने मुझे बोला था सिल्वर चीज़ों को थोड़ा साफ कर दे पाया. इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम अगो एंड आई वॉज प्रॉब्ली बोर्ड दैट डे और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल. शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर. मैं तो बोर हो गया था, तो उसी दिन किसी कारण से मुझे घर पे रुकना ही पड़ा. तो मैंने सोचा कह दिया तो कर ही देते. आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज दैट इट वाज द स्पून्स, फोर्क्स एंड नाइफ्स ऑफ कोर्स. तो उसने पूछा क्या क्या चीज़ें. तो मैंने बोला तो ये जो चीज़ें हैं ना, नाइफ्स, फोर्क, स्पून वगैरह वगैरह. एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर. तब जाके मुझे याद आई, मुझे इतना ध्यान भी नहीं था हम तो कैसे बर्तन में खाते थे. पता पड़ गया कि वो पूरा सिल्वर से बना हुआ चीज़ें थे. द गर्ल लाफ्ड अगेन. आई बेट यू डोंट नो इट चीज एदर. आई लुक्ड इंटेंटली एट हर. इंटेंटली मीन्स अर्नेस्टली. व्हाट वी ईट विथ, शी आस्क्ड. वेल डू यू नो, आप किससे खाते हुए बताओ ना. शी हेसिटेटेड. शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वांटेड टू ओपन ए ड्रॉयर. वो सीधे जाके एक अलमारी खोलने का कोशिश किया. आई विल लुक इट इज़ इन हियर. मैं देखूंगी वो यहाँ है या नहीं. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. इतना में मैंने घड़ी देखा, टाइम ज़्यादा हो गया, ट्रेन निकल जाएगी. और शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉयर. वो ड्रॉयर में हाथ पकड़ रखी थी. डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर. मम्मी का इंतज़ार नहीं कर रही क्या. नो आई मस्ट गो बैक टू द डोर. नहीं मुझे जाना है, मेरी गाड़ी निकल जाएगी. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉयर ओपन. आई कैन फाइंड माई ओन वे. वो ड्रॉयर खोल के एक नज़र तो लगा तो दिया. नो आई मस्ट गो. आई वॉक्ड टू द डोर. द गर्ल पुल्ड द ड्रॉयर ओपन. आई कैन फाइंड माई वे.
As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. जैसे मैं निकल गई बाहर और स्पून्स और फोर्क्स की आवाज़ सुनाई दिया. At the corner of the road, I looked up at the name plate. रोड में निकल के मैं एक बार और मोड़ के देखा. मार्कोनी स्ट्रीट इट सेट. कहता है मार्कोनी स्ट्रीट है. आई हैड बीन एट नंबर 46. मैं उसी घर से निकला आया, नंबर 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट. एड्रेस बिल्कुल सही थी. फिर वो लेडी क्यों उसको अंदर जाने, वो समझ गया उसकी बेटी है, उसको अच्छी तरह जानती है क्योंकि मम्मी ने परिचय कराई थी भी एक बार. उसको पता पड़ गया ये छोरी ये माल मांगने आई है, इसलिए उसने उसको अंदर जाने दिया. बट नाउ आई डिड नॉट वांट टू रिमेंबर इट एनीमोर. अब तो मैंने सोचा रहने दो, अब क्या करनी. वो लेडी की आदत से पता पड़ गया, हाव भाव से पता पड़ गया कि मुझे बात करना ही नहीं चाहा. किसका मतलब वो चीज़ें देना भी नहीं चाहेगी, और कुछ बोले तो उससे अच्छा है तो चुपचाप निकल जाए. I would not go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value. अब मैंने सोचा अब मुझे वहाँ जाना ही नहीं है. हमारी चीज़ें तो भी वहाँ जाके उसको बोलने से कोई मतलब नहीं, उसका सारे वैल्यू ख़त्म हो गया मेरे लिए, इसलिए मैं नहीं जाऊँ. When served from them, you see them again in strange surroundings. अगर ऐसे जाऊँ तो अजीब सा लगेगा. And what should I have done with them in a small rendered room where the shreds of back-out paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer. करूँगा भी क्या, इतना सामान लाके एक छोटा सा किराए के कमरे में रह के करके भी क्या करूँ. So I resolved to forget this address. इसलिए मैंने सोचा एड्रेस ही भूल जाओ. Of all the things I had to forget, that would be the easiest. उस कमरे के बारे में भूलने लग जाऊँ, उस एड्रेस के बारे में भूलने जाऊँ, धीरे धीरे उधर का वस्तुएं भी भूलने आसान होगी. और इसलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, वो नहीं देगी. अब उसके बारे में सोच के दिमाग ख़राब करने से अच्छा है लीव इट.